Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Since I welcome you in our IT class, chapter number 2, Networking and Internet. Up to this class, we have discussed different type of networks and their evolution, history of internet, how it started, then computer networks, then communication way and its requirement which are needed to connect the internet, then transmission media, topologies, how the computers will be connected in a network, then types of networks, different internet working devices which are required to connect for the internet. And now, what is internet we have already discussed, that is the millions of computers which are connected together for sharing different resources. We have explained all these in previous classes, but today we will start with applications of internet. You can say what are the main purposes or main benefits applications which are provided by internet are these. First, out of them, first is that email. An email is basically used to send text as well as multimedia messages from one to many persons. It has become a medium of communication among the different persons. We can send message only a text message, or it can include the multimedia attachments with the text as well as audios, videos, and others. In this, the sender will send the message to one or more recipients, and sending and receiving mails can take place through web-based email applications that are called webmail applications, such as Gmail, Windows, Live Hotmail, Yahoo. These are the different companies, or you can say the different webmail applications which we use for sending our information from one to many. The transferring email over internet is governed by a set of rules known as email protocols. Example for that is that SMTP means Simple Mail Transfer Protocol and POP3 means Post Office Protocol. These are basically used to send the email messages from one to another. Second is there the File Transfer Protocol. The File Transfer Protocol, you can say FTP, is also known as the full form of File Transfer Protocol, and it is abbreviated by FTP. It is basically used to transfer the file from one computer to another computer over internet. Next is that the remote login. The remote login is also known as telnet. The telnet stands for T Emanuel Network. It is a client server based application that allows the users working on one system to access remote computers. मीन्स रिमोट लॉगिन के अंदर क्या होता है, जब हम जो है एक अपने ऑफिस या होम के अंदर बैठे हुए जो है किसी भी दूसरे सिस्टम के ऊपर जो हमारी वेबसाइट है उसको एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज रिमोट लॉगिन. For initiating the remote login, the user should specify the address of the remote system. Means you should know the address of the website or the computer which you want to access. तो अगर आपका उसके पास जो है यूजर नेम और आईडी पासवर्ड जो है आप उनका यूज कर सकते हैं उनके एड्रेस को एक्सेस करने के लिए. इफ यू हैव द राइट्स देन यू कैन कनेक्ट विद दैट द रिमोट कंप्यूटर. Then it comes wild. www stands for World Wide Web. It is commonly known as web. It is the repository of information on machines
spread all over the internet which are linked with each other for sharing the information. The information is organized in the form of different documents called web pages. कि जो हमारा www है, you can say it is the large pool of information where the information is stored in the form of different web pages which are linked together with one another through the internet. A web page may contain text, images, audio, videos, information for linking the web page and other websites in the form of different hyperlinks. It uses the distributed client server architecture based on HTTP. The HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. The client request the relayed through the internet to the appointment server which sends back to the reply through the internet to the host computer. इसमें क्या होता है, जब भी आप लोग जो है किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए एड्रेस डालते हैं, इट मीन्स दैट यू आर रिक्वेस्टिंग फ्रॉम द होस्ट कंप्यूटर कि भाई आपने अपने रिक्वेस्ट डाली है कि होस्ट कंप्यूटर के लिए। होस्ट कंप्यूटर कौन सा होता है, जो आप लोगों को एक्सेस देगा अपनी वेबसाइट से। बट आपके रिक्वेस्ट सबसे पहले सर्वर के पास जाएगी। सर्वर जो है आपके रिक्वेस्ट को पास करता है उस होस्ट कंप्यूटर को। अगर वो अलाउ करता है, दैट इंफॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन द योर मॉनिटर स्क्रीन और योर स्क्रीन। देन इट कम्स TCP/IP मॉडल। TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज जस्ट यूज टू होल्ड द डिफरेंट वेबसाइट्स or the collection of different web pages which are stored on the www। कि जो हमारा इंटरनेट के ऊपर जो हमारे डिफरेंट फाइल्स जो स्टोर्स हैं डिफरेंट मशीन्स के ऊपर, उनको जो है होल्ड करके रखता है ट्रांसमिशन कंट्रोल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट रिक्वायर्स द सेवरल सब टास्क। भी इसको करने के लिए जो है उसको कुछ टास्क की जरूरत होती है। सबसे पहले आता है इसके अंदर सेंडर एंड रिसीवर, क्योंकि जब आप लोग किसी से आप रिक्वेस्ट करेंगे, then you are a receiver and which sends you the information। जब आपने क्या किया, किसी को रिक्वेस्ट सेंड की, you are the sender। if someone sends you the reply, then that is known as the sender and you are the receiver। तो according to that you receive the information from one to another through the internet। as shown, the TCP/IP mode companies comprises of 4 layers: application layer, transport layer, internet layer and link layer। कि जो आपका TCP/IP जो प्रोटोकॉल है, इसके अंदर जो है 4 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले आते हैं एप्लीकेशन लेयर, फिर आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर एंड इंटरनेट लेयर एंड लिंक लेयर। द डाटा एंड मैसेज इज क्रिएटेड at the sender's end at application layer, at the receiving and it is examined and processed possibly at the application layer। इसके अंदर क्या होता है, जब आप लोग जो है डाटा और मैसेज कोई भी क्रिएट करते हैं, उसको क्रिएट करने के बाद जो है वो हमारा क्रिएट होता है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। जब भी आप कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं, पहले उसको क्रिएट करते हैं, उसके अंदर यूज होती है एप्लीकेशन लेयर। एट द रिसीविंग एंड इट इज एग्जामिन्ड एंड प्रोसेस्ड एट द एप्लीकेशन लेयर। मीन्स जब आप लोग किसी भी मैसेज को बनाते हैं या उसको रिसीव करते हैं, वो हमारी रिसीव होती है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। दिस लेयर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवेलपिंग द मैसेज टू बी सेंट विद द हेडर। और ये लेयर हमारा क्या काम करती है, जब भी आप कोई मैसेज भेजते हैं उसके बाद कोई हेडिंग लगा देते हैं ताकि जो है वो आगे आइडेंटिफाई हो सके। द सेवरल प्रोटोकॉल सच एज HTTP, SMTP, POP3 and Telnet creates on this layer। भाई इस तरह के प्रोटोकॉल्स जो है वो भी इसी लेयर के ऊपर बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन लेयर passes the message to the transport layer। अब सेकंड लेयर की टर्न आ चुकी है कि जो आपकी मैसेज आपने क्रिएट किया था एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, उसको आगे भेजना है। मीन्स वो इसको क्रिएट करने के बाद जो है हैंड ओवर कर देती है ट्रांसपोर्ट लेयर को। द ट्रांसपोर्ट लेयर विच appends the information about the source and destination ports
ऑफ द रिसोर्सेज एट द टू एंड्स। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, वो इसको जो है चेक करती है, अपेंड करती है, मीन्स उसके अकॉर्डिंगली इसको कंपेटिबल बनाती है कि जो सेंडिंग पोर्ट है और रिसीविंग पोर्ट के अकॉर्डिंगली। एट द एंड द पोर्ट्स प्रोसेस द मैसेज मेनली एंड टू एंड प्रोटोकॉल्स ऑपरेट एट दिस लेयर। उसके बाद क्या करती है, और तब जो है उसके बाद इसको पार्ट्स के अंदर जो है प्रोसेस करती है इस आपके मैसेज को, और फिर उसको सेंड कर देती है आगे नेक्स्ट उसके नेक्स्ट सिस्टम पर जाने के लिए। द टीसीपी एंड यूडीपी टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज अ reliable connection oriented protocol needs when timely and error free delivery of data is इंपॉर्टेंट। इसके अंदर क्या है, उसके बाद जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है वो आपका सुनिश्चित करता है कि इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द ओरिजिनल मैसेज विदाउट एनी एडिटिंग टू द अदर पर्सन। देन इट कम्स द ट्रांसपोर्ट लेयर हैंड्स ओवर द सेगमेंट्स। जब आपको सेंड करने के लिए जो है इट ब्रेक्स द मैसेज इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, भी छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर जो है इसको डिवाइड कर दे, छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड दीज स्मॉल पार्ट्स आर नोन एज द डिफरेंट पैकेट्स, एंड दीज पैकेट्स आल्सो कॉल्ड पैकेट्स। फर्दर द ट्रांसपोर्ट लेयर डिवाइड द मैसेज इनटू नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कॉल्ड सेगमेंट्स। अब उसके बाद क्या करता है, आगे भी जो आपके मैसेज को जो है छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ दिया जाता है अपने प्रोटोकॉल के द्वारा, एंड दीज फ्रेगमेंट्स आर नोन एज द सेगमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द मैक्सिमम ट्रांसमिशन साइज परमिटेड। अब जो कि हमारा जो डाटा की ट्रांसमिशन जो है वो डिपेंड करती है भी उसके ऊपर जो कितना बड़ा मैसेज जा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली जो है मैसेज को ब्रेक कर दिया जाता है उन सेगमेंट्स को जो है ट्रांसफर करने के लिए एज पर द रिक्वायरमेंट और एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द बैंडविड्थ। The transport layer hands over the segments on to the next layer. That packets are routing and injects packets into the network. उसके बाद क्या होता है, इन पैकेट्स को जो है वो सेंड कर देता है नेटवर्क के ऊपर। देन द नेटवर्क लेयर इज यूज, और यू कैन से एट द रिसीविंग एंड द आईपी डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ पैकेट्स एक्सचेंज्ड ओवर द इंटरनेट। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो लेयर आती है वो एक्सचेंज करती है मैसेजेस को जो है आपका जो रिसीवर है उसके एंड पर। दिस प्रोसेस इज यूजुअली accompanied by three other protocols, namely internet control message protocol, address resolution protocol, and dynamic host configuration protocols। कि जो आपकी नेक्स्ट आते हैं लिंक लेयर, इट इज आल्सो कॉल्ड द होस्ट टू द इंटरनेट लेयर। अब इंटरनेट लेयर की जो होस्ट कहलाती है वो कहलाती है लिंक लेयर। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग द हेडर containing sender and receiver physically address to the packets receiving from the internet layer। अब जो लिंक लेयर का क्या काम है, वो हमारा होस्ट कहलाता है इंटरनेट लेयर के अंदर। इस लेयर का जो काम है, इट एडेड हेडर भी जो है वो आपके मैसेज के साथ हेडर लगाती है और उसका एड्रेस लगाती है भी कहाँ से किसने जो है आपका मैसेज भेजा है और किस लोकेशन से जो है आपका मैसेज आया है। द रिजल्टिंग मैसेज इज कॉल्ड अ फ्रेम। मीन्स अब इंटरनेट लेयर क्या आती है, जो भी मैसेज जो है जिसके अंदर हेडिंग लगाने के बाद उसका एड्रेस लगाने के बाद जो पैकेट्स रिसीव होते हैं उस किससे, इंटरनेट लेयर से। इसका जो रिजल्टेंट मैसेज बनता है उसको हम बोलते हैं फ्रेम। इट मे बी नोटेड द रेसिपिएंट फिजिकल एड्रेस corresponds to the physical address of the next host on the network to which message is to be relayed, and not the physical layer address the destination machine। इसके बाद क्या था, जिसके ऊपर मैसेज भेजना है उसको डिसाइड करके जो लिंक लेयर है वो आपको जो होस्ट है उसके पास चला जाता है, और चला जाने के बाद जो है अगर जब क्योंकि आपके पास ये मैसेज जब आपको ईमेल करते हैं आप लोग, तो आपके पास मैसेज ये आता है कि यूर मैसेज हैज बीन सेंट। मीन्स क्या है कि भी आपका वहां से रिप्लाई आएगा, और रिप्लाई के बाद जो है आपके पास दोबारा से रिवर्ट मैसेज आता है कि आपका मैसेज जो है डिलीवर हो गया जिसको आप लोग भेजना चाहते हैं। द टाइम टेकन बिटवीन दिस प्रोसेस, कि जैसे आपने मैसेज भेजा और नेक्स्ट के पास की कंफर्मेशन जब आपके पास आएगी कि मैसेज आपका जो है इट इज सेंट, दैट इज confirmation message is called to you। Next is that the network safety concerns।
क्योंकि भी हमने मैसेज जो है सेंड कर दिया, बट हाउ वी आर एश्योर्ड दैट कि देयर विल बी द सेफ्टी ऑफ आवर मैसेजेस with increase in the use of networking for accessing different services, the security becomes the major concern। कि जब हम लोग जो है अपने मैसेजेस को भेजते हैं या हमारे इंफॉर्मेशन जो है हम नेटवर्क्स के थ्रू जो है एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द मिसयूज ऑफ डाटा, हैकिंग, कॉपीराइट्स इश्यूज एंड मैनी मोर। क्योंकि इसके अंदर ये जरूर जो है हमें इंश्योर करना होता है कि जो इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं इज इट सेफ और नॉट। फॉर दिस वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस which can disturb our information or which can just have the threats for our information. First of all, malwares. Malware is a term which refers to the malicious softwares which are designed with the intention to affect the normal functionality by causing harm to the system or with the intention of getting unauthorized access to the computer or denying access to the legitimate users of computing resources. A malware may be a virus, worm, Trojan horse, a spam. अब क्या होता है, मालवेयर्स क्या है देखिएगा। मालवेयर्स आर द सॉफ्टवेयर्स। भाई मालवेयर्स हमारे सॉफ्टवेयर है जिसको डिज़ाइन किया गया है कि हमारे सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है उसको जो है नुकसान पहुंचाने के लिए, सिस्टम के अंदर जो है या अनऑथोराइज इंफॉर्मेशन की एक्सेस के लिए, या जो क्या जो किसी सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है उसको जो है कंप्यूटिंग से डिनाई करने के लिए जो कि कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जिनको कि जो है हम लोग मालवेयर्स बोलते हैं। मालवेयर्स के अंदर जो है वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस और स्पैम्स जो है ये हमारे जो है मालवेयर्स के अंदर आते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट कि हम जो है इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि जो सिक्योरिटी के अंदर जो थ्रेड्स हैं वो हमारे जो है दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वायरसेस, worms, Trojan horses, and spams. All these are collectively known as malwares because they are the malicious softwares which are designed with the harmful intentions to make harm to their owners or users. So we are to be very alert. So they can be the threats for the security of और इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। ये हमारे जो भी इंटरनेट के ऊपर जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके लिए जो है काफ़ी जो है घातक होते हैं। ये सिर्फ जो है इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो है कोई भी मिस पर्सन जो है अपनी आपकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ कर सके या आपके इंफॉर्मेशन को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सके, आपके सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा सके, इसके लिए ऐसे बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ओके, वी विल डिस्कस ऑल दीज viruses, malwares. First of all, virus. A virus is a software code that may harm your system by overwriting or corrupting the system files. भाई वायरस क्या है? ये भी एक आपका प्रोग्राम है जो कि एक सॉफ्टवेयर की कोडिंग है। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जब जो है ये आपके सिस्टम में आ जाए तो इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, वो अपने आप को जो है आपके सिस्टम की जो फाइल्स हैं उनको ओवरराइट कर लेता है और ओवरराइट करने के बाद जो है आपके सिस्टम्स के फाइल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। अ कंप्यूटर वायरस इज सिमिलर इन एक्शन टू वायरसेस इन आवर बॉडी। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर वायरस जो है एंटर कर जाता है, उसी तरह से जो है ये वायरस जो है आपके सिस्टम के अंदर एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद जो है आपके सिस्टम की जो फाइल्स हैं, चाहे प्रोग्राम फाइल्स हैं, आपकी यूज़र फाइल्स हैं, बूट सेक्टर्स हैं, इन सभी को जो है करप्ट कर देता है। करप्ट करने के बाद आपका सिस्टम स्लो हो जाता है एंड इट गिव डिफरेंट टाइप ऑफ अदर मैसेजेस विच बिकम्स द प्रॉब्लम फॉर यू। द बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस क्या करता है? इट डिस्ट्रॉय द बूटिंग सेक्टर ऑफ योर कंप्यूटर और योर डिवाइसेस। बूट सेक्टर क्या होता है कि द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी डिस्क, चाहे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, क्योंकि इन्हीं के फॉर्म के अंदर जो है आपके सिस्टम के अंदर प्रोग्राम्स डाले जाते हैं और यहीं से आपका सिस्टम स्टार्टिंग पॉइंट लेता है। मीन्स द बिगिनिंग प्रोग्राम्स फ्रॉम वेयर योर सिस्टम डिटेक्ट्स दैट your system will read the initial information of the disk
those are known as the boot sector, and boot sector virus starts destroying such type of programs. Then there are other viruses also, that program file virus. This program file virus infects the system files, means operating system files. So you can say the computer files which are used by the computer, it start destroying such type of files, like you can say exe files. Then there are the different macro viruses are also, means the program which uses macros. Macro क्या होता है? Macro is a set of instructions which are executed one by one when you apply them, and you can give a name to the set of instructions and you can use them without typing the entire process. मीन्स रिपीटेटिव वर्क करने के लिए जो है हम कुछ इंस्ट्रक्शन का सेट बना लेते हैं और उसको जो है आप लोग अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज कर लेते हैं. जैसे एमएस एक्सेल और वर्ड के अंदर हमारे पास मैक्रोज की फैसिलिटी होती है. व्हेन यू विल यूज देम you can create them or you can use multiple times when they are required. So which programs have the option of macros? The macro virus only disturbs or can harm such type of programs. Now it comes worms. Worm is often received via network and it automatically keeps on creating several copies of itself on the hard disk, hereby फ्लडिंग द हार्ड डिस्क. इसमें क्या भाई वर्म क्या है? ये हमेशा जो है एक नेटवर्क के थ्रू आप सिस्टम के अंदर फैलता है और ये जो है ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, अपने जो है कॉपीज बनाता रहता है और कॉपीज बना करके जो है आपके हार्ड डिस्क का जो साइज है उसको फुल कर देता है. और जब जो है आप लोग इसके कोई भी रिसीव करते हैं, देन इट कैन बी थ्रू द ईमेल अटैचमेंट्स और इट कैन बी फॉरवर्डेड बाय एनीवन, बट इट यूज नेटवर्क्स टू बी गेट ट्रांसफर्ड. भाई अगर उस सिस्टम को आने का जो आपका वर्म्स हैं वो नेटवर्किंग के थ्रू, चाहे वो कोई बंदा आपको जो है कोई फाइल भेजे या आपको ईमेल्स के थ्रू आए, तो उनके थ्रू जो है आपके वर्म्स आपके सिस्टम्स में आ जाते हैं और ये अपनी कॉपीज जो है बनाते रहते हैं. और एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी हार्ड डिस्क जो है वो फुल हो जाती है एंड इट विल गिव द यू हैव लेस स्पेस फॉर इट. देन इट कम ट्रोजन हॉर्स. ट्रोजन हॉर्स इज अ कोड दैट अपीयर्स टू बी डिजायरेबल एंड यूजफुल बट एंड्स ऑफ हार्मिंग द सिस्टम. अब ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स जो है आपको एक ऐसा कोड दिया जाता है या कोई ऐसा कोई प्रोग्राम दिया जाता है विच सीम्स वेरी यूजफुल टू यू. भी आपको ऐसा लगता है कि भाई ये हमारे लिए काफ़ी यूजफुल प्रोग्राम है या यूजफुल कोड है, आप उसको जो है ओपन कर लेते हैं सिस्टम के अंदर एंड देन इट स्टार्ट्स डूइंग हार्म टू योर सिस्टम. ट्रोजन हॉर्स कैन बी अटैच इटसेल्फ विद द सेफ एप्लीकेशन. कि इसके अंदर क्या होता है भाई, जब आप लोग अपने फाइल्स को रखते हैं तो आपके फाइल्स के साथ जो है वो अटैच कर लेता है अपने आप को. फॉर एग्जाम्पल इट मे बी अटैच टू एनी गेमिंग डाउनलोड. गेमिंग जो आपका जो गेम डाउनलोड करता है इंटरनेट से उसके अंदर ही आ सकता है, या कोई आप लोगों को जो है कोई ग्रीटिंग्स भेज दे या आप लोगों को कोई गिफ्ट भेज दे, उसके अंदर आकर के जो है ये आपके सिस्टम के अंदर जो है आ जाता है. देखने में तो ये लगता है भी आपका काफ़ी यूजफुल प्रोग्राम, किसी ने हमें गिफ्ट भेजा है, बट इन एक्चुअल इट इज नॉट द गिफ्ट, इट इज द ट्रोजन हॉर्स वायरस. द हैकर कैन मॉनिटर ऑल एक्टिविटी परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम. अब हैकर से काम करते हैं और उसके बाद जो है वो जो हैकर है जिसने इसको बनाया है वो आपके सिस्टम के सभी रिसोर्सेज को जो है हैक्स परफॉर्मेंस एक्टिविटी को चेक करता है. इट कैन आल्सो कंट्रोल द इन्फेक्टेड सिस्टम बाय हार्मिंग द डाटा ऑन द सिस्टम. और इस तरह से जो है वो जो हैकर है आपकी सिस्टम की एक्टिविटीज को नोट करता है और उसके बाद आपके सिस्टम का कंट्रोल या उसके अंदर फाइल्स को एक्सेस कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल इन लेट 1990s the Trojan horse named Sub7 was created with took advantage of security flaws of earlier versions. भाई सबसे पहले जो ट्रोजन हॉर्स जो है 1919 के अंदर जो आया उसका नेम था Sub7 क्रिएट किया गया है ताकि जो है वो चेक कर लें कि भाई किसके सिस्टम की जो सिक्योरिटी के अंदर कहां पर चूक है उसके अंदर. Earlier browsers such as Internet Explorer and Chrome is illegally access the host computer. Then it comes spams. Spams are the unwanted electronic mails. Means you can say that junk mails are known as the spams. These are generally sent in bulk over the internet for the recipient. ये आपके पास काफी सारी मात्रा में आ जाती हैं, but there is no use of that.
These are unwanted mails. It can be from the commercial mails or it can be in the form of different advertisements, but you never rely on that. If you do not know the person who have sent the mails to you, never open them. It can have the viruses which can harm your computer or that can be very harmful to you. Okay students, आज हमने जो किया स्टूडेंट्स उसके लिए जो है यू आर टू रीड इट केयरफुली एंड वी विल डिस्कस देम द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर. It's enough for today. Thank you and have a nice day. See you next time in the next class.